Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So today in this session, we are going to discuss that is very important one. That is how, most importantly, how to prepare for the JIB, right? So here we are going to discuss all those things like how we need to prepare and what should be our plans. So mainly, this is there in case of JIB, right? When we join the bank, we initially there will be something newcomers, new joinee, or later on those who have something more than one or two attempts, but still they have not cleared the JIB exams, right? So there are two cases only, or another third case can be possible that those who have left with only one or two papers, right? So in that case, mostly I will say this will be more helpful for the new joinee as well. And those who have already prepared, those who have left with one or two paper, they can also enhance their preparation by using this session, right? So here you can see that what we are going to discuss. So obviously here, most importantly, I am going to share my own experience. When I also joined the bank, that time I had no idea that how to going to prepare for the JIB and all those things. And most importantly, I was not also from the commerce background. So one more important thing is that commerce background is necessary to clear the JIB. So obviously no. Because see, nowadays it's like generalization stream. So all from all other different streams they are coming to banking, right? So it doesn't matter that where you are from, you can easily crack the JIB in one go, right? So I am Sumant. Let's start the session for today. So मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब हम JIB के बारे में जानने को हमें मिलता है, कब हमें मिलता है? Normally when we joined, we interacted with all other colleagues, those who have already attempted and those who have already cleared. So in that case, we had or we have some different opinions that time, right? So particularly if I would like to share my own experience, so it was my training time. So that time I just got to know that there is something like JIB we need to clear, so that we'll also get some increment. Obviously that's also one part, and later on it will also enhance your knowledge in case of banking. So all the JIB syllabus are part of my trainings. So some little bit I had idea. So it's easy to go, but still if I have completed all the syllabuses overall. So if I share with you that how to prepare for this thing, main important thing is before preparing for the JIB or before going to attempt for the JIB, most importantly we all the aspirants जो हम लोग सब प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू स्टार्ट. और recently I have also interacted with many new aspirants, new joiners, those who had only one question in their mind, where to start. These are the questions. See, you can also see here, where to start, where should I start, and should I go for paid course, and how to manage while working. And there are many questions, right? But still that's why I thought to share directly, because after working in a branch, there are something little time to do all the stuff, but still it's good to go, so that you guys, it will be more helpful for you guys to clear the JIB in one go. Later on you can go for the CIB as well, right? So most importantly, someone also suggested me during that time that clear the JIB and CIB as soon as possible in your banking career, so that it will be completely stress free. There will be nothing like that. You can easily go for any other exams later on, right? So just with smart strategy, here I would like to mention, see, smart strategy, this is my personal opinion, that is लोगों से मैं बात किया हूँ बहुत सारे से जो लोग प्रिपरेशन किए हैं. सो सबका ना एक डिफरेंट टाइप का रहता है ओपिनियन. सो उसके हिसाब से जब मैं अपने खुद से इनको मैच कराया, दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट आई नीड टू हैव माय ओन स्ट्रेटेजी, बिकॉज हम सबका जो अप्रोच है ना डिफरेंट रहता है. सो हाउ टू स्टार्ट, इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली हाउ टू स्टार्ट, देन स्टार्ट विथ द सिलेबस. ठीक है. सो सिलेबस मीन्स हमें आइडिया ऐसा नहीं कि आपको सब पता है.
बैंकिंग के बारे में। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, जस्ट सिलेबस को पढ़ते जाइए। देखिए आपका जेआईबी में मैं एक बना दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि 3 पेपर्स है ऑब्वियसली, ठीक है। एक हो गया आपका अकाउंट्स, और एक हो गया लीगल, और एक हो गया बेसिक बैंकिंग। बेसिक बैंकिंग में आपको आइडिया होगा ही थोड़ा, और अकाउंटिंग जो लोग को लगता है कि मैं कॉमर्स से नहीं हूँ तो फिर मेरे को अकाउंट में थोड़ा मतलब क्लियर करने में टाइम लग जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अकाउंट में जो है सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको आप जान के कॉन्सेप्ट वाला है जिसको इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मेन बात है कि जिन लोग कॉमर्स से है उनका थोड़ा हाई स्कोर रहेगा और हमारा थोड़ा उनसे कम बार पास तो हो जाएंगे, ठीक है। सो हाउ टू स्टार्ट हियर, जस्ट स्टार्ट विद द सिलेबस। आप सिलेबस को पकड़िए एंड डायरेक्टली रीड करिए। आपको कुछ पता नहीं है, जस्ट रीड करिए। सेकेंड टाइम उस रीड जब किए ना, उससे थोड़ा प्रायोरिटाइज करिए। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूंगा, और एक भी कुछ कुछ सेशन हम आपके साथ ऐड ऑन कराएंगे, सो दैट आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा मॉड्यूल जो है। एक में 2-3 जो जेआईबी के लिए भी 2-3 वीडियो डाल दिया हूँ जिसमें कि प्रायोरिटाइज, जिसमें कि कौन सा मॉड्यूल जो है इंपॉर्टेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। सो आप उसको रेफरेंस के लिए भी ले सकते हैं। सो उसके साथ ही जो नेक्स्ट है, वेयर शुड आई स्टार्ट। आपने सिलेबस को ले लिया और सिलेबस को पढ़ लिए, तो यहाँ पर आपको मार्क डाउन कर लेना है। एक सेकेंड। सो यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है कि सिलेबस में जैसे कि ABCD, ऑब्वियसली ABCD 4 ही मॉड्यूल रहता है, और इसमें से अगर हम इजीली मतलब इफ यू डू एनालिसिस इन दिस 4 मॉड्यूल्स, हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि इसमें से ना आपको अगर एक में आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, पर 3 को अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, हमारा जो है 45 और हम पकड़ लेंगे 50 जो हमारा क्वार्टर थे उसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो सिलेबस को पकड़िए, और साथ ही साथ मैकमिलन बुक ऐसा नहीं कि नेसेसरी है, आप ले सकते हैं, पर देखिए हम बैंकिंग में अगर अपने कैरियर बनाना चाहते हैं तो बुक रखने में क्या दिक्कत है, आप उसको रेफरेंस के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आप मैकमिलन बुक को ले लीजिए, पर जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए तो मस्त है मैकमिलन बुक, पर जेआईबी के लिए जो भी रेफरेंस मटेरियल है, हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर मैं शेयर कर दिया हूँ। अब उसको रेफरेंस में लेकर अगर उतना ही आप खत्म कर लेते हैं, हर डे आप अगर कुछ पढ़ते हैं उसको ही खत्म कर लेते हैं, उसके नीचे एमसीक्यू है, देन आपका इजीली इसको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसको हम लास्ट में कवर करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ टू मैनेज वाइल वर्किंग। सो हाउ टू मैनेज वाइल वर्किंग मीन्स जब हम काम करते हैं, देखिए ब्रांच में आप तो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफिसर है, न्यू ज्वाइन है, तो देन यू विल हैव सम यू विल हैव सम टाइम टू प्रिपेयर, बट उस टाइम आपको लॉन भी करना है। आज न्यू ज्वाइन हमें लॉन भी करना पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग में तो जितने जल्दी आप लॉन्डिंग करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, उतने जल्दी विल फील कंफर्टेबल, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग वही है। सो ऑब्वियसली वहाँ पर तो हम यहाँ पर अपना जो टाइम है इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पर स्टिल हम जो टाइम है ना उसको रिवाइज, जो मेरा मेन टारगेट रहता था, मैं भी जब ब्रांच में, मेरा तो ट्रेनिंग के टाइम क्लियर हो गया था, मैं DPP क्लियर कर लिया था, ठीक है। सो उसके बाद जब आज न्यू ज्वाइन हम ज्वाइन किए तो उस टाइम मेरा CIB भी क्लियर हो गया। सो उस टाइम मैं क्या किया ना, ब्रांच का टाइम को रिवाइज के हिसाब से लिया। जब भी मेरे को टाइम मिला था मैं रात को थोड़ा बहुत पढ़ लेता था और रिवाइज जाके वहाँ पर कर लेता था, ठीक है। मेरे को अगर कहीं बैंक के काम में बाहर जाना पड़ता है दिन में और भी रिवाइज कर लेता था। सो आप इस अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देखिए, मेरा ब्रांच के हिसाब से मैं अपना टाइम को मैनेज किया, आप अपने ब्रांच के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करिए। सो बस स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, और इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। मैं भी अपना ब्रांच में देखा हूँ कलीग्स को जिन्होंने ब्रांच में प्रिपरेशन करके ही अपना एग्जाम भी क्लियर किए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग क्लरिकल में है देन विल हैव डेफिनेटली मोर टाइम, सो जल्दी से इसको क्लियर कर लीजिए, सो दैट आपको भी इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। सो जितनी जल्दी करिएगा इतने आपका प्रमोशन में भी हेल्प कर लेगा। सो नेक्स्ट है हमारा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जब हम जो वर्किंग एम्प्लॉय हम काम करते हैं देन हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए आपको ज़्यादा कुछ जेआईबी को पास करने के लिए, स्पेशली अगर जेआईबी के बारे में बात करें, तो पास करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो आपको बस लिटिल स्मार्ट जो है स्ट्रैटेजी के साथ कर लेना है। पहले सिलेबस पढ़े, सिलेबस आपको हो गया, देन जो मटेरियल्स है उसको आप मॉड्यूल वाइज पकड़िए। जैसे कि हमारा जो 4 मॉड्यूल है ना, ABCD, तो आपको लग रहा है कि मेरा जो इजी मतलब मेरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं A एंड D से, तो आप क्या करिएगा ना, A एंड D को पहले खत्म कर लीजिए, क्योंकि आप जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आप कंफर्टेबल है, ठीक है। सो B एंड C से आपका इसमें से क्या हो सकता है ना, आपका B भी जितना है और ये भी है, दोनों का
जो वेटेज है सेम रहता है। तो आप इसमें से अपना कंफर्टेबल जोन को पकड़िए एंड उसको करिए। और साथ ही जब आप बी को एंड सी को थोड़ा थोड़ा कर रहे होंगे उसके साथ ए एंड डी को रिवाइज करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से एटलीस्ट आपका 20 मार्क्स आएगा ना। अगर ये 40 एंड 40 आया तो इस दोनों में से मिलेगा तो 20 मार्क्स आएगा ही, ठीक है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली रिवाइज करिएगा और इससे अकॉर्डिंगली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पर मॉड्यूल वाइज जाइए, ठीक है। और जो भी है सब जो है हमारा सबको पढ़िए, जस्ट हैव सम ओवरऑल आइडिया, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन होना चाहिए और आपको अगर थोड़ा भी आइडिया होगा देन यू कैन इजीली एनालिसिस। और अभी जो जेआईबी में है थोड़ा केस स्टडी आता है पर नॉर्मली क्वेश्चंस जो है थियोरेटिकल रहता है, ठीक है। सो उसको लिए आपको जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा आइडिया होगा देन आप एग्जाम में क्या होगा ना आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए आपको ओवरऑल आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ ये वाला मैं पढ़ा था, ये वाला पॉइंट में पढ़ा था, ठीक है। सो इसी के साथ आप इसको ऐसे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली। और जो है अकाउंट्स, देखिए अकाउंट्स में आप जितना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही, क्योंकि यही एक है अकाउंट्स जिसमें कि आपका थोड़ा न्यूमेरिकल्स आता है। जैसे कि अकाउंट्स ऑब्वियसली आपका जैसे बैलेंस शीट वगैरह आ गया, ठीक है। गोल्डन रूल तो अगर आपका गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना देन आपका अकाउंट्स इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सॉल्व करना होगा। जितना एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, हर दिन आइए ब्रांच से एक एग्जाम्पल को पकड़ रहिए, इसको 1-2 दिन के लिए एनालिसिस भी करिए, जैसे कि उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना आपका एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ क्लियर हो। तो धीरे धीरे अकाउंट्स में जिन लोगों को मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट से थोड़ा मतलब रुक जाता है, क्योंकि देखिए आप अगर पढ़े भी नहीं तो फिर आपका 40 वक्त तो रहेगा, पर मेन बात है कि 2-3 मार्क का गैप रह जाता है जिसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। सो फिर उसके लिए ना आप पर्टिकुलर एनालिसिस करिए, वाला क्वेश्चन से आ रहा है और इसको ही पकड़िए और इसके लिए एनालिसिस करिए, सो दैट उस पार्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन से आया ना फिर मेरा एग्जाम में 100% ठीक होगा ही होगा, ठीक है। सो ऐसे एक्यूरेसी के साथ आप 100% चाहिए कि थोड़ा ओवरऑल आपको आइडिया हो जाए। जैसे कि यहाँ पर बी मॉड्यूल को आप ज्यादा फोकस दिए और ए को डी को आपके लिए इजी था तो आप इसको कंप्लीट कर लिए, तो सी को क्या करिए ना ओवरऑल आइडिया मान लीजिएगा, देन ओनली विल गेट सम आइडिया कि अगर सी से बाई चांस आ जाए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, देन यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द 100 मार्क क्वेश्चंस, राइट। और जो रहा अकाउंट्स बेसिक्स ऑफ बैंकिंग तो इजी है, यू कैन इजीली गेट टू स्कोर मोर मार्क्स इन बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, राइट। आपको और भी कुछ स्ट्रैटेजी करना चाहिए क्योंकि हमें जेआईबी क्लियर करना है, पर्टिकुलर पेपर नहीं। सो हमें ओवरऑल 3 पेपर के लिए प्लानिंग बनाना है। अगर आप किसमें डाउन है देन दूसरे में इंप्रूव करिए, उसमें हमें मेक श्योर कर लेना है कि 50 अबव आ जाए, ठीक है। 50 अबव टू गेट सी 100 आउट ऑफ 100 यू जस्ट नीड 50। सो ये वाला मार्क पाने के लिए आपको बस 40 तो ऐसे ही अगर आप जाएंगे ऐसे ही एग्जाम देने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, पर आपका जो है 1 चांस यू विल लूज इट। पर स्टिल मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे भी जाएंगे देन आपका 40 आ ही जाएगा। जो नेक्स्ट मार्क होता है अगर आप फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं 5 to 10 मार्क्स के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक, ठीक है, सो दैट आपका एक ही अटेम्प्ट हो जाए। सो हमारा उम्मीद वही है कि आप लोगों का भी जल्दी से एग्जाम क्लियर हो जाए, देन ओनली आप जल्दी से सीआईबी को भी दे दें, ठीक है। देन अपना माइंड फ्री हो के आराम से अपना बैंकिंग लाइफ को चिल करके एंजॉय करिएगा, ठीक है। सो ये रहा। और जो है लीगल, जो हमारा मेन रहता है ना हमारा लीगल पेपर, थोड़ा इसमें लीगल में जो है ना क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है, बहुत सारा लॉज है, और अभी आप जो न्यू ज्वाइन है जिन लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया तो ठीक है, और जो लोग न्यू ज्वाइनिंग है नॉर्मली हम ना प्रिपरेशन के टाइम क्या है हम थोड़ा थोड़ा बेसिक्स चीज जैसे आरबीआई के बारे में, एनईएफटी आरटीजीएस पर इतना डीपली नहीं गए। जैसे आपको चेक के बारे में पता है पर चेक का जो प्रोसेसिंग है उसके रिलेटेड आपका केस स्टडी आता है। तो जब हम न्यू ज्वाइन करते हैं तो हमारा इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है, पर जब भी आप लॉ को पढ़ेंगे उसको रिलेट करिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। मे बी आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट जो केस स्टडी है लीगल पेपर के रिलेटेड, सो दैट आपको भी यहाँ पर हेल्प हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए थोड़ा टाइम निकलना पड़ता है, सो कंटेंट वगैरह सब बनाना पड़ रहा है। सो देखते हैं अगर टाइम मिला तो आई विल ऑल्सो शेयर, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग। सो पर स्टिल अगर आप अपने लेवल में प्रिपरेशन कर रहे हैं देन एग्जाम्पल के साथ इसको लीगल पेपर जो है देखिए ये उस टाइम भी आता था केस स्टडी और ये हर टाइम, अभी तो जेआईबी सीआईबी आईआईबी ने ऐसे कर लिया है कि आपको केस स्टडी आएगा। और केस स्टडी जो है ना मतलब केस स्टडी है तो फॉर मी मेरे को ये लगता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा है, क्योंकि केस स्टडी से हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाता है एज ए रेफरेंस और इसके अकॉर्डिंगली हम रिलेट करके एटलीस्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंटली अगर आप ये जो है हम इतना जो कवर कर रहे हैं इतना प्रायोरिटी प्लानिंग करके कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं साथ ही इसको करना पड़ेगा।
तो इसलिए हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ जो है, जो अप्रोच है वो भी थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा ही, ठीक है। और सबका सुनिए पर करिए अपना ही, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर आप किसी को कॉपी करना चाहेंगे देन थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है, ठीक है। अपने हिसाब से करिए, अगर अपने बैंक एग्जाम क्लियर किए हैं इतना भी कंपटीशन के बाद तो ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। और ये जो हम कर रहे हैं ना, इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपने अंदर ना जो है कॉन्फिडेंस, इसको बिल्ड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में जो जेआईबी हो या सीआईबी हो, इसमें आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एनालिसिस के टाइम, आप नर्वस फील ना करें, कॉन्फिडेंस फील करें, इसीलिए हम ये वाला जो है ओवरऑल प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा शुड आई गो फॉर पेड कोर्स, अभी हमारा यूट्यूब एंड कुछ कुछ है जो कि पेड कोर्स आ गया है, पर पेड कोर्स के लिए मेरा अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं, देखिए इतना जेआईबी, पर्टिकुलर जेआईबी के लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारा भी मिल जाएगा, आप उसको रेफरेंस के हिसाब से लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर अभी क्या है ना, हमारा आज ये आदत हो जाता है कि हम तब तक सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक हम उसके लिए कुछ पे नहीं कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सीरियस नहीं है, आपको सीरियस होना है, पे करने के बाद आपको लगेगा यार मैं इतना पैसा पे किया हूँ, आई नीड टू प्रिपेयर, जहाँ आप कर सकते हैं। पर पेड कोर्स एंड खुद के प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एनालिसिस तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। देन अच्छा है कि इसमें थोड़ा टाइम आप ही दे दीजिए, अगर आप दे देंगे देन विल गेट टू नो। और थोड़ा रेफरेंस के लिए आप डिफरेंट सोर्स को, पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, गूगल में कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है, अब उसको इजीली गेट मतलब आपके पास मिल ही जाएगा, ठीक है। और जो भी मटेरियल है ना, उसको अगर एक लाइन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे लिए कितना टाइम चाहिए, ये जो एग्जाम क्लियर करने के लिए हमारे पास कितना टाइम चाहिए, सो दैट हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए हम प्लानिंग इन प्रैक्टिकल वे में बोल रहा हूँ कि हम प्लानिंग करते हैं कि 6 मंथ, जैसे कि इस टाइम जेआईबी हो गया तो मैं अभी से तुरंत स्टार्ट कर देते हैं कि 6 मंथ से मैं कर लूंगा, हमारा माइंड में तो वही आता है। पर धीरे धीरे हमारा जो सीरियसनेस है ना, वो जो लास्ट 1 मंथ में ही आता है, ठीक है। तो इस टाइम आप ओवरऑल ये जो 6 मंथ में आप तो नॉर्मली हम नहीं हो पाते हैं सीरियस, पर 1 मंथ ये जो प्रैक्टिकल है, पर कोई कोई हो सकते हैं रेयर केसेस, ठीक है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो इट्स गुड थिंग। पर जो ये 1 मंथ के लिए क्या है ना, आप ऐसे कवर करिए, ये जो 6 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ है, इसको ऐसे कवर करिए कि आप जो लास्ट 1 मंथ में आपको कोई भी जो टॉपिक न्यू ना लगे। ओवरऑल आइडिया करिए, मैं भी आपको समझ में कंप्लीटली ना आए पर थोड़ा थोड़ा तो आएगा ना, तो फिर इसीलिए आपको न्यू ना लगे, सो दैट आपको ये जो लास्ट 1 मंथ में जहां पर आपको डर भी होगा और फेल होने का भी डर होगा, और क्या होगा, नर्वसनेस भी होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद आपको पता होगा कि हाँ मैं थोड़ा ही पढ़ा हूँ, देन आप उस टाइम ना और थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला मेन है। और एक इंपॉर्टेंट है, हम 1 मंथ तक भी आ जाते हैं, और 1 मंथ के बाद हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम चला जाता है, जब लास्ट 1 वीक होता है, जैसे कि बेसिक बैंकिंग पेपर है उसका 1 वीक पेपर है, तो उसका जो 1 वीक, ये जो 1 वीक 7 डेज का टाइम होगा, यहाँ पर और भी सीरियसनेस आ जाता है, ठीक है। अगर बैंकिंग, देखिए आपको यहाँ पर टारगेट कर लेना इंडिविजुअली, पहले फर्स्ट पेपर को क्लियर कर लो, उसके बाद आपका नेक्स्ट 1 वीक आएगा। पर यहाँ पर अगर आपके पास थोड़ा आइडिया होगा देन ओनली आपका 1 वीक के अंदर आपका अकाउंट वगैरह क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो मेन बात है कि प्लानिंग, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको प्लान करके इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो टिप्स वही है, ये मैं तो ऑलरेडी सब कुछ मेंशन कर लिया हूँ, बहुत कुछ है। सो ओवरऑल अगर आपको कुछ और भी जानना है देन आप मेरे को कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं, देन पर्टिकुलरली सो दैट मेरे को लगेगा कि हाँ ये वाला इंडिविजुअली आप लोगों का डाउट है, देन आई कैन इजीली कवर ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो बहुत सारी चीज है। सो अगर ये वाला और मतलब लॉन्ग ना करते हुए बस वही है कि कॉन्फिडेंस फील करिए, और जितना भी है अगर आप और भी अच्छा चाहते हैं देन मैकमिलन बुक आप ले सकते हैं, पर उसमें जो इतना दिया है ना, और एक इंपॉर्टेंट है, मैकमिलन बुक अगर आप लेते हैं देन आपको फुल बुक को खत्म करने की नो नीड, ठीक है। उसमें आप जो रेफरेंस मटेरियल को पकड़िए, जो एक शॉर्ट नोट है उसको भी पकड़ सकते हैं, एक ओवरऑल मानने के लिए आप शॉर्ट नोट को पकड़िए, वहां पर आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे को डीप जाना है देन थोड़ा नोट्स को जाइए, वहां पर आपको एग्जाम्पल्स लेना है, देन आप दूसरे वाला जो है बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको और भी छोटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए देन यू कैन रेफर टू द इंटरनेट कंटेंट, राइट। सो ऐसे करके ही आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना जो बैंक का काम है वहां पर लीगल, देखिए जो लीगल पेपर है ना, उसको आप अपना बैंक का काम के साथ, अपना जो डेली एक्टिविटी है उसके साथ रिलेट करिए। बिलीव मी विल, आपका जो बैंक का नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ आपका लीगल पेपर वेरी इजीली क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका केस स्टडी आएगा, ठीक है। सो
overall these are just some ideas, so I like to share with all of you. So होपफुली आप लोगों को ये वाला थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा और हेल्पफुल ऑब्वियसली हुआ होगा. देन अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड don't forget to mention your comments, share your thoughts, so that I can also make in the upcoming sessions, right? So till that point, just take care of yourself and keep preparing and just believe in yourself. Thanks for watching the video. Thank you.